colleagues and dear students, we are gathered here for a 2-day skill development program on self-leadership to social change. And in these 2 days, you will learn how to become a good leader through self-awareness so that an impactful societal change that can be brought through your contribution to the society. Social change does not begin with system, policies or institutions. It begins with individual. That is called as a self-leadership. We can motivate communities, movements, nations, but before we learn to lead others, we must learn to lead ourselves. Self-leadership is the foundation upon which all meaningful leaderships build. Self-leadership enables us to value others, take responsibilities for a change, remain committed to the purpose even in the face of challenge. A self-aware individual develops integrity, empathy, discipline, moral courage, and essential quality not only for personal growth but for creating a positive change in the society. By practicing self-awareness, अपने आप ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, by practicing self-awareness, an individual or a person can transform gradually into social leaders who can motivate masses, take communities along with, and bring about sustainable change in the society. So I welcome you all in this 2-day skill development program. And now I would like to invite our worthy principal to come on dais and guide our students about this 2-day skill development program. प्रोफेसर जितेंद्र जी, कोऑर्डिनेटर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, मेरी बीबीए और बीकॉम टैक्स प्लानिंग के फैकल्टी मैंबर्स मैडम तरनदीप जी ते प्यारे विद्यार्थी, ये जो 2 दिन प्रोग्राम असी अज शुरू करन जा रहे हैं, इसका मंतव कुछ प्रोफेसर जितेंद्र ने तुहानूं दस्सिया कि असी सैल्फ लीडरशिप तो सोसाइटल चेंज कि लीडरशिप क्वालिटीज़ डिवेलप करके असी समाज दे विच किवें बदलाव कर सकते हैं, उस दिशा वाल अगे वधना। जिवें पोस्टर दे विच तुहाडे लिखिआ स्किल बेस्ड लीडरशिप प्रोग्राम, लीडरशिप इज आर्ट एज वेल एज स्किल आल्सो। बहुत सारे लोग कह देंगे कि लीडर्स आर बॉर्न, कि जिवें एक पर्टिकुलर लीडर है वो आप लीडर है तो वह अगे जिहड़ी जनरेशन है वह भी लीडर्स की होएगी। ये मिथ असी बना दी है, लेकिन इस तरह की लीडरशिप के नाल बदलाव नहीं आते। एक व्यक्ति जिहड़ा आप किसी विभाग का मंत्री है और उस तो इलावा ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਦਲਾਵ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਲੀਡ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੌਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਬ ਨੇ 50 ਬੱਸਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੂ ਗਰੋ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 20 ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੋਕਸ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਹੋਏ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਗਰੋ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ 50 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ 30-32 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡਿਸਕਵਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ 30 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ 30 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਵੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਡਰ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਐਮਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਗਰੋ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ
ਉਹ ਸਮਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ then they become a great leader। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲੀਡ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਆ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਲਾਈਫ ਸਕੈਚ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਤਾ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਕਤੀ ਲੀਡਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟ ਲਰਨਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ BCom ਤੇ BBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਬੇਸਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਸੋਸਾਈਟਲ ਚੇਂਜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ 10-10, 15-15 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ, ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਾਟ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਟੈਸਟ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਲੈਂਟ ਹੋ, ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੱਲ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੋ ਬੜੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਆਲਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦੈਮ ਏ ਟਾਸਕ। ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਮਰਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਐਟੀਕੇਟ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਫਿਸ ਐਟੀਕੇਟ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਪ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਠੰਡ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਬਿਕਮ ethical, compassionate for a change which you bring in the society. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now I would like to invite Madam Professor Taranveer Kaur to come on dais so that ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Good morning to all. Have a warm morning because today it is very chilly. So my warm greetings to all the young leaders, budding leaders. So can you count how many leaders are there in the class? Can you estimate? How many leaders are there in the class? Do you see how many leaders are there in the class? Better don't freeze your mind. Make it active. 32? How come? Very good. Good round of applause for Kamal.
This is the thing that you have to see. You have to see in yourself that you are a leader. And if you discover the qualities in you, you can develop it. Until it is recognized, you cannot develop, you cannot work on it. So there are 32 leaders, but can you see those leaders on the board? Mahatma Gandhi and Dr. Rajendra Prasad. What quality do you see in them? You must have read about them. What is the prominent quality? कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि महात्मा गांधी में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में आप जानते हो कि उनके अंदर है कोई क्वालिटी? तभी तो वे लीडर है ना. कौन सी है? कॉमन गोल. Pardon? कॉमन गोल. किसी भी मतलब किसी भी एक फोटो को लेके अचीव करने का कॉमन गोल है. हाँ. कम्युनिकेशन. So first ingredient, first requirement for a leader to have a common goal. Don't be selfish. सबसे पहला requirement leader का ये है कि वो अपने लिए नहीं सोचता, वो सबके लिए सोचता है. He wants to do some service for the community. ये पहला उसका है. दूसरा, हाँ, they think about the community, so they bring about the social change. तो महात्मा गांधी जी जो थे, he was champion of non-violence. उन्होंने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया. मतलब लीडर का ये मतलब नहीं है कि वो क्रूरता से बोले, क्रूअल होए, गुस्सा करे, एंगर शो करना नहीं है. लीडर का मतलब है टू बी काइंड, पर डरपोक नहीं. टिमिड नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, काइंड होना चाहिए. He was thoughtful. वो दूसरों के बारे में सोचते थे, पर वो बुली नहीं करते थे, किसी को धमकी नहीं देते थे. तो इसीलिए हमारे भारत देश ने ये आज़ादी प्राप्त की. दूसरा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. आपको पता है उनके बारे में? क्या है उनकी क्वालिटी, मेन क्वालिटी? He was very humble. इतने पढ़े लिखे थे पर उनके ऊपर बिल्कुल गुमान नहीं था, एरोगेंस नहीं थी, प्राउड फीलिंग्स नहीं थी. तो जितना घड़ा भरा होता है या जितना बर्तन भरा होता है उतनी आवाज कम आती है. बोलते वही हैं जिनका दिमाग खाली होता है. तो ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है एक लीडर के लिए. साइलेंस, पॉज भी बहुत जरूरी है. You have to speak when it is the right moment, and you have to say good words, inspiring words. तो लीडर्स के लिए 3 I है मेरी तरफ से. I मतलब I for India. First is they inspire us. Second is they influence us. पहले इंस्पायर करते हैं अपने प्रिंसिपल्स से. दूसरा अपने कारनामों से इन्फ्लुएंस करते हैं, जो काम करते हैं. जो लीडर्स होते हैं वो बोल बोल के लीडर नहीं बनते, काम करके लीडर. शो द वर्क and you will be recognized in your among the people, among the masses. तीसरा क्या है? Impact. जब काम करोगे तो उसका असर दिखेगा कि नहीं दिखेगा. तो 3 I's for leader. अब आगे हम चलते हैं लीडरशिप के रिगार्डिंग. आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा. अपने अंदर हमने इंट्रोस्पेक्शन करनी है. इंट्रोस्पेक्शन मतलब सेल्फ एनालिसिस करना है कि हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमें आगे जाकर एज अ लीडर बना सकती है. सो दिस इज द वे, दिस इज द पाथवे टू बिकम अ लीडर. ये मैंने आपसे पहले ही सवाल कर लिया है. हु इज अ लीडर? हमने बता दिया है कि लीडर जो है he works for the community. He does not think for himself, but he thinks for the masses. बॉस जो होता है वो कहता है जाओ काम करो, पर लीडर क्या कहता है? लीडर सेज लेट्स गो, साथ में चलते. चाहे आर्मी में भी आपने देखे हैं इतने ज्यादा सेवा मेडल मिले हैं, परमवीर चक्र मिले हैं, जितने ऑफिसर्स को, जवानों को मिले हैं. उनको क्यों मिले हैं? उन्होंने दूसरे की जान बचाई है, अपनी जान गंवा दी. तो लीडर ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज टीम.
अपने आप को उन पे न्यौछावर कर देता है। लीडर ऑलवेज सेज लेट्स गो। A leader knows the way, shows the way and goes the way. Knows का मतलब लीडर हम तभी बन सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज है। We are the guiding light. टॉर्च है ना हमारे हाथ में। टॉर्च इज a symbol of leader. तो वो टॉर्च बनने के लिए हमें क्या चाहिए? We need to be learned. हमें उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तभी हम दूसरों को रास्ता दिखा। Knows the way, shows the way. ये नहीं कि अपनी जान बचाने। पिक्चर में आपने देखा होगा जो कनिंग लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो अपनी जान बचा के जुरासिक पार्क है, एलियन है, प्रेडेटर है, और भी कई साउथ इंडियन मूवीज हैं, उसमें क्या होता है, जो खराब लोग होते हैं वो पत्ती गली से चले जाते हैं और बाकियों को छोड़ के चले जाते हैं, बट एक्चुअली जो चले जाते हैं वही डेंजर में होते हैं, दे आर किल्ड इवेंचुअली। यहाँ पर भी a leader knows the way, shows the way and goes the way. Goes the way का मतलब क्या हुआ? Goes the way का मतलब क्या हुआ? जितने भी चैलेंजेस आएंगे सबसे पहले लीडर उसको फेस करेगा, उसके बाद अपनी टीम मेंबर को बोलेगा कि अब सेफ है तुम जाओ। So he accompanies his team members in all the challenges. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and grow more, then you are a leader. Leader जो है खुद तो लीडर बन जाएगा, लेकिन सारों को लीडर बनाकर फिर उनके साथ जाएगा। मतलब वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं रह जाएंगे, वो आगे जाकर उस लीडर से इंस्पायर होके खुद भी एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। ये देखो यहाँ पे लीडरशिप कैपेसिटी, रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है। सपोज करो जंगल में हमारी टीम घूम गए हैं, तो जो भी एक लीडर होगा उसको पता होगा कि जंगल में सरवाइव कैसे करना है, कौन से पौधे का हम एडिबल है वो खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं। तो रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको पूरी तरह से हमने यूटिलाइज करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरे यूटिलाइज करके सबका पोटेंशियल हमने जानना है। जैसे आज आपका पोटेंशियल हमने रिकॉग्नाइज किया है, दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग हियर। तो लीडर ऑलवेज रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल, फिर वो सपोर्ट करता है उस पर्सन को, एंड देन इंक्रीज्ड लीडरशिप कैपेसिटी। ये इस वाली चीज को, ये क्या हो रहा है सर, इसको पीछे करना है। अच्छा बस जल्दी जल्दी करो। हाँ ये पहले की बनी हुई है। हाँ सर ने बोला मुझे। अब लीडरशिप के लिए एक ट्रेट थ्योरी है। मिलिट्री के अगर आपने इंटरव्यूज देने हैं तो वहां पे ट्रेट थ्योरी को फॉलो करते हैं जो इंटरव्यूज होते हैं। दे लुक फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है? हाँ, कोई क्वालिटी, कोई कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी पर्सनालिटी को दूसरे से अलग करेगा। ये ट्रेट थ्योरी किसने दी है? गॉर्डन एल्पोर्ट ने। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है हु सेज दैट our personality is not only determined by genetics but also, आगे तुम बताओगे, जीन्स तो हमें पेरेंट्स से मिले, तो हमारी पर्सनालिटी जो है that is determined, our appearance, our nature is determined by genetics, genes, जो hereditary material है। Next, what other things that influence our personality according to you? Environment हो गया, अपब्रिंगिंग, ठीक है, वेरी गुड। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका स्कूल, आपके कनेक्शंस, ये सारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और बिहेवियर कैसे, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है एक्चुअली वो एनवायरनमेंट हो गया। पेशेंस लेवल बेटा वो सब एनवायरनमेंट से होएगा। आपकी नॉलेज कहाँ से आप गेन कर रहे हो, स्कूल में कैसे दोस्त हैं, ये सारी चीजें आपको
जो है वो एनवायरमेंट से मिलती है। तो एनवायरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप योर पर्सनालिटी अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स। तो ये जैसे ये एग्जाम्पल है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है। साइंस में आपने पढ़ा होगा ये कि एक टाइम ऐसे आ गया था जब पूरा अकाल पड़ गया था और उस वक्त खाने की चीजें नहीं मिलती थी जानवरों को। तो जिराफ एक ऐसा बंदा था जिसने पत्तों को, नीचे नीचे पत्ते कहीं नहीं मिलते थे, जो ऊंचे वाले पत्ते थे, हाई लीव्स थे, उनको पकड़ पकड़ के खाने लग गया। तो ग्रेजुअली आफ्टर मेनी जनरेशंस उसकी गर्दन में एक चेंज आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया एंड उसकी जो गर्दन है दैट बिकेम elongated। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीन्स आर नॉट द डिटर्मिनर्स ऑफ अवर पर्सनालिटी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें वैसा माहौल नहीं मिला है, जरूरी नहीं है। जितने अच्छे एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं जो कहाँ से आए थे, इतनी गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे, बट ही वॉज ऑन अ टॉप पोजीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि हमारी जो जीन्स है या हमारी फैमिली है वो हमारी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रही है, पर हम अपना करेज, अपनी हिम्मत, अपनी डिटर्मिनेशन अगर बना के रखेंगे तो हमारी जो पर्सनालिटी है दैट विल गो अंडरगो अ ड्रास्टिक चेंज जस्ट लाइक जिराफ। ये है ट्रेट्स जो उसने मेंशन किए हैं गॉर्डन एल्पोर्ट ने। कई लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको ओपननेस कह सकते हैं, जो सोशल लोगों से मिलना पसंद करते हैं, बाहर जाना, पार्टी आउटलेट, लोगों से मिलकर उनको शर्म नहीं आती। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो तरह के लोग होते हैं। अब आपने पहचानना है कि आपकी क्वालिटी कैसी है। ओपननेस में आ जाता है क्यूरियस। ओपननेस मतलब जो लोग जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों है, या इस दुनिया में ये ऐसा क्यों है, या तारे क्यों चमकते हैं, या सूरज क्यों निकलता है, ये चीज ऐसा क्यों है। ये क्यूरियोसिटी जो है दैट मेक्स यू एक्सट्रोवर्ट। ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल, जितने बच्चे शैतान होते हैं उतने ज्यादा हम कहते हैं कि दे आर इंटेलिजेंट, क्रिएटिव एंड ओपन टू न्यू आइडियाज। कॉन्सेंशियस, कॉन्सेंशियस का मतलब अपनी चेतना। जो हम लोग जब गलत काम करते हैं तो हमें एक आवाज सुनाई देती है कि ये काम गलत है, ये मत कर। जैसे हम किताब खोल के बैठे हैं और साइड पे एक बीप बज जाती है मैसेज की, मन कहता है कि तू पढ़ ले, कल तेरा एग्जाम है। नहीं, दिमाग कहता है कि तू पढ़ ले कि तेरा एग्जाम है, मन कहता है कि देख ले किसका मैसेज आया। वो कॉन्शियस होता है, मतलब वो हमारी चेतना। ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक, पंक्चुअल, अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड डिपेंडेबल, ये क्वालिटीज आपको बहुत जरूरी है एज अ लीडर। पंक्चुअलिटी, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, तरीके से काम करना होना चाहिए। अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड डिपेंडेबल। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन मतलब आउटगोइंग, टॉकेटिव, सोशेबल, एंजॉयज बीइंग इन सोशल सिचुएशंस। कुछ बच्चे होते हैं वो घर पे रह के ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को बाहर दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस का मतलब एफेबल, टॉलरेंट, सेंसिटिव, ट्रस्टिंग, काइंड एंड वार्म। वो उनकी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि उनका नेचर कैसा है, काइंड है, वार्म है। फीलिंग्स मतलब वी ऑल आर, व्हाई वी आर कॉल्ड ह्यूमंस, क्यों कहा जाता है हमें ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस क्यों, व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। इंटरैक्ट करते हैं, पर एनिमल्स भी इंटरैक्ट करते हैं because of emotions, because of speech and emotions, so that makes us human। ये सारी क्वालिटीज हमारी ह्यूमन हमें बनाती है। न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म इज अ नेगेटिव क्वालिटी। इसमें आ जाता है एंग्शियस, इरिटेबल, जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, जो इम्पेशेंट होते हैं और जिनके पास पेशेंस नहीं है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। इरिटेबल। टेम्परामेंटल का मतलब जो पलक झपकते ही उनका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। अभी गुस्सा है, अभी हंसने लग जाएंगे, अभी कुछ और डिसअपॉइंट हो जाएंगे, अभी उदास हो जाएंगे। जैसे आज के जमाने में जेन ज़ी फेस कर रही है
क्योंकि आप रीलें स्क्रॉल कर रहे हो, यू आर प्लेइंग विद योर इमोशंस। फटाफट हंसी का आ जाता है सीन, फटाफट रोने की रील आ जाती है, फटाफट कुछ और। तो तुम्हारे इमोशंस जो है वो डेवलप नहीं होने दे रहे आप लोग उनको मेच्योर टाइम नहीं दे रहे। एक बच्चे को भी मेच्योर होने के लिए 14-15 साल चाहिए होते हैं, बट वी आर नॉट अलाउइंग आवर माइंड टू डेवलप बिकॉज वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग। तो वो टेम्परामेंटल, तभी आपको फोन करते हुए अगर मम्मा आवाज लगाते हैं या कोई कहते हैं खाना खा लो तो आपको गुस्सा आता है। दैट मेक्स यू टेम्परामेंटल एंड मूडी। ये सारे आप में इसमें से अब मतलब आपको ये क्वालिटीज नहीं रखनी है एज अ लीडर, क्योंकि टीम वर्क में हर बंदे का अलग नेचर होएगा और उस नेचर के हिसाब से आपको अपना नेचर को कंपैशनेट बनाना पड़ेगा, पेशेंस शो करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू बी अ गुड लीडर यू नीड टू हैव पॉजिटिव क्वालिटीज। ये हैं कुछ कार्डिनल ट्रेट्स। कार्डिनल मतलब जो पैशनेट ट्रेट्स हैं, दैट आर द रूलिंग ट्रेट्स। रूलिंग मतलब उनकी पर्सनालिटी में जो डोमिनेंट ट्रेट है। जैसे मैंने महात्मा गांधी जी का बताया था, नॉन वायलेंस था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही वॉज वेरी हम्बल, ह्यूमिलिटी थी। ये फर्स्ट पिक्चर तो पता है आपको? हाँ, मदर टेरेसा। अल्ट्रुइज्म इज द रूलिंग ट्रेट ऑफ हर पर्सनालिटी। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है सेल्फ सैक्रिफाइस। शी वर्कड फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स थ्रू आउट हर लाइफ, उसको अल्ट्रुइज्म कहते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ही हैड अ विजन। उनको हमेशा ही हैड अ विजन। जो भी हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स आई हैं सब इन्हीं के सदके आई हैं, जो भी डेवलपमेंट हुआ है। एंड ह्यूमिलिटी, ही ऑल्सो शेयर्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक एज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत नीले थे, पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी इनके अंदर कोई गुमान नहीं था। सैडिस्ट, ये तो बताइए, हिटलर, he was a sadist। sadist का मतलब होता है जो दूसरों को तंग करके प्लेजर डिराइव करते हैं। those who derive pleasure from irritating others, torturing others। इनके बारे में हाँ, अब्राहम लिंकन, his trait is integrity and committed। integrity का मतलब he worked for social justice। डिसाइसिव, ये मोदी जी हमारे, डिसाइसिव एंड ऑटोक्रेटिक। 3 तरह की लीडरशिप होती है, वो जतिन सर आपको बताएंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये है हमारे दलाई लामा सर। His ruling trait is compassion। He has, in his eyes, we all are children from one God। ये है बिहेवियर थ्योरी। सर ने भी बताया था, हमारे प्रिंसिपल सर ने, कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। तो वी शुड नॉट make faults in ourselves, we should not find faults in ourselves, because we have a very open opportunity, we have very opportunities to become a leader if we work for it। Focuses on the actions of the leader, not on mental qualities or internal states। पर्सनालिटी और कैरेक्टर में क्या फर्क है? पर्सनालिटी जो है वो आपके जीन्स से आती है, हाइट कैसी है, आपके आईज कैसे हैं, फेस कैसा है, दैट इज द पर्सनालिटी। वो झड़ जाती है जैसे पत्ते झड़ जाते हैं। पर जो हमारा रूलिंग कैरेक्टर है, हमारी इंटीग्रिटी है, हमारा सच बोलना, किसी से गलत ना करना, किसी के साथ इनजस्टिस ना करना, ये सारे हमारे कैरेक्टर हैं। दे वर्क लाइक रूट्स इन अवर पर्सनालिटी। हमारी पर्सनालिटी को एक्चुअली शेप कौन करते हैं? कैरेक्टर। Last slide, Nelson Mandela, the leading compassionate struggler of life। 1960 में साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली थी। नेल्सन मंडेला ने 14 साल जेल में बिताए थे। So he worked for the social justice to bring about the freedom and to end racial discrimination। जो स्किन कलर के कारण उनको इतना ज्यादा सहना पड़ता था अफ्रीकन्स को, उसके लिए नेल्सन मंडेला जी ने लड़ाई लड़ी थी।
So he says, when a man has done what he considers to be his duty to his people and his country, he can rest in peace. सुबह हमने क्या किया, हम रात को सोने से पहले सोचते हैं कि आज हमने क्या किया है, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया. ये हमारी कॉन्शियंस है जो हमें छेड़ती है, हर्ट करती है. अगर हमने किसी के साथ गलत बात की है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, if we have done wrong to somebody, our conscience will pinch to us. So always try to do good deeds. नेक काम करने सीखो जिससे कि रात को आपको चैन की नींद आ सके. यही बात ये कह रहे हैं. I believe I have made that effort. और वो आज अपनी आंखों के, हमें दूसरों की आंखों में ऊंचा होना इतना जरूरी नहीं है जितना अपनी आंखों में हमें अपनी नजर मिलानी जरूरी है. So I have made effort and that is therefore why I sleep for the eternity. Now the next round will be conducted by Professor Jatinder Singh. He will make some activities for you. ਸੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਈ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦਸੀਆਂ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਥਿਊਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਯਾਨੀ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮ ਜੀਨਸ ਵਿਚ ਮੋਟੀਵੇਟ ਯੂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਫੋਕਸ ਅ ਲਾਈਟ ਔਨ ਯੂ ਟੂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਬਿਕਮ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਪੀਪਲ aware about yourself. क्योंकि जब तक a person is not introspecting his own self, he or she will not become a good leader. So self awareness बहुत जरूरी है to become a good leader or to become a leader. So for that we are having that leadership, self awareness and social impact. एक तरह का कह लो कि evolution चलता पे अपने कोल, है ना. You become a leadership through self-awareness. You become a leader through self-awareness, and that leader then will bring a great social impact. Like मैडम ने 2-3 एग्जाम्पल दसिया ने, 2-3 मैं भी लेके आया. Let's see. Leaders, they are either born or they are either made. Some leaders they are born, but mostly the leaders they are made, है ना. Made through their actions, made through their interactions, made through their thinking abilities, made through their ethical, made through their regarding the values of others, है ना. So बहुत सारियां qualities ने which makes you a good leader through self awareness. So these are some of the examples. ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦਾ. Who was he? ਹਜੇ present ਹੀ ਨੇ. Who is he? Bangladesh, and right now he is the advisor to government of Bangladesh, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਅ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ in Bangladesh, and ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਦੇ ਰੂਰਲ ਵੂਮਨਸ, ਪੂਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਪੂਅਰ ਵੂਮਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮੋਨੇਟਰੀ ਗੇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਅਰੈਸਟ ਆਫ ਪੂਅਰ ਵੂਮਨਸ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਵੈਰੀ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼, not only from Bangladesh, otherwise throughout the world, कि they can uplift themselves and reach up to at par with the modern counterparts. ठीक है ना. So he was considered as one of the greatest social leaders जिन्हें की माइक्रो फाइनेंस ਦੇ थ्रू लेडीज ਨੂੰ uplift ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. ਆ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ, है ना. So she is a leader which is not born but the leader made.
थ्रू सिचुएशनल कंसेप्ट क्योंकि ਇਹਦਾ हाउ ही बिकम अ लीडर ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਾਈ ਨਾਲ she is a Pakistani because she was raising voice for upliftment or girls education in that remote areas of Pakistan ठीक है ना ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ was not कह लो कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ is suppressing the women's है ना so Malala Yousafzai ਜਿਹੜੀ ਸੀ she actually rescued she saved herself from that assassination and right now she is the woman who is now working for the girls education as well as for upliftment of the girls from the remote areas one is this Wangari Maathai है ना शी इज अ केनियन वूमन देखो सोशल इंपैक्ट ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ somebody is affected with drugs ਉਹਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ that is one of the social responsibility which today's youth they can take ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਫॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਿ ਅਗਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਵਟ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਇਨ ਕੀਨੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਦੈਨ she started working to convert that desert land into a green land by initiating a green belt movement in Kenya ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ that was brought under green cover है ना ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ then from Kenya this movement spread to whole of the world and ਪੂਰੇ world ਦੇ ਵਿੱਚ under the motivation of this Wangari Maathai 56 million plants they were planted ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹ ਲੋ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ 150 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ 56 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹਾਊ ਮਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸੀਕੁਐਸਟਰਡ from the atmosphere into the woods and in that way impact ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ environment ਸੀ throughout the globe that environment to some extent is being ameliorated modified for the benefit of the society so societal impact ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ another one is Kailash Vidyarthi ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ social reformer ਹੈ Kailash Vidyarthi ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ poor children ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ they protected even children's which are being sexually exploited ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ so that is why he is also considered one of the great social reformer list is very long ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ we have endless list of these social reformers or these great leaders ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ introspect ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ until and unless you becomes good from inner side you cannot reform the society ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ ਬਿਫੋਰ that you cannot why we are going for this activity ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਥੀਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਇਨਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਕਵਰ ਯੂਰ ਇਨਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅ ਸੋਸਾਇਟਲ ਚੇਂਜ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟਲ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਬਿਲਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੂਵ ਯੂਰ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕਮ ਔਨ ਅ ਸਟੇਜ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਨਕਰੇਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ
ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਕੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਇਵੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕੰਸੰਟਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਰਰ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਲਾਸਟ ਬॉय ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਾਰਟਸ ਨੇ, ਓਕੇ। ਮਿਰਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਲਿਸਨ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੀਡਰ ਹੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਲੀਡਰ, ਵਟ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੀਡਰ ਹੂ inspire others, motivate others, है ना, work for the society, work honestly। थोड़ी कोई भी थानू लगता कि क्वालिटीज थानू माइंड च आ रही है, सिर्फ 3 क्वालिटीज राइट करनियां ने, उस चार्ट ते राइट करो। आपस च डिस्कस करनी है, डिस्कस कर लो। तुसी अपने आप सोच के करना, अपने आप सोच के कर लो, ओके। सो मिरर मतलब तुसी अपनी रिफ्लैक्शन चेक करनी है, ठीक है ना। अंदरों थोड़े की आवाज आ रही है कि आई एम अ लीडर हु, आई एम अ लीडर हु। अभी तक ये जो हमारी वर्कशॉप चल रही है, मैडम तरन ने या प्रिंसिपल सर ने या जतिंदर सर ने प्रॉपरली हमें लीडरशिप के बारे में बता दिया कि क्या है। तो आपके मन में भी अब लीडरशिप का कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा होगा कि लीडरशिप क्या है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का बेसिकली ये बोल देते हैं कि लीडरशिप मैनेजमेंट टॉपिक्स जो है कॉमर्स वालों के हैं, लेकिन हम जिस मर्जी फील्ड में हो, हमने स्टडी करी है चाहे नहीं करी, हम सब लीडर्स हैं ही हैं। हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं। हमारे अपनी फैमिली में बड़े सारे लीडर्स हमें मिलते हैं, हमारे फादर, हमारे मदर, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, वो भी एक तरह के फैमिली लीडर्स तो हैं ही हैं। हम जब भी लीडरशिप की बात करते हैं, लीडर्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सीधा क्या आता है? पॉलिटिकल लीडर्स। ऐसे ही आता है कि ये लीडर, जैसे किसी का भी नाम ले लो, किसी का मैं फेवर नहीं कर रहा या अनफेवर नहीं कर रहा, लीडर्स की बात करें तो दिमाग में आएगा नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मिस्टर राहुल गांधी जी। तो ऐसे अगर पंजाब की लीडरशिप की बात करें तो आएगा अपने भगवंत मान जी, जो हमारे प्रेजेंट सीएम है, पुराने सीएम्स की ध्यान में आ जाएगा, या कोई अच्छा लीडर जिसने कुछ अच्छा काम हमारे फेवर में किया है, उनका ध्यान हमारे मन में आता है। लेकिन लीडर्स हम सब हैं। एक तो लीडर आप सब सिलेक्ट हो गए। जब ये वर्कशॉप के बारे में हम प्लान कर रहे थे तो अराउंड 130 स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई करा था, ठीक है। उसमें से हमने पहले ही बोल दिया था कि लिमिटेड स्टूडेंट्स को हमने असेस देना है इस वर्कशॉप के अंदर। सिलेक्शन टेस्ट में कम आए, और आज इतनी ठंड थी फिर भी यहाँ पे 38 स्टूडेंट्स बैठे हैं, और इतने की हमें चाहिए थे 30 to 40 के बीच में ही हमने ये वर्कशॉप जो है कंप्लीट करवानी थी। तो आप आए हो, तो लीडर तो आप पहले नंबर पे खुद ही हो। एक बार अपने लिए क्लैपिंग करो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं, विजनरी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, ठीक है, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, ये सारी क्वालिटीज अभी जतिंदर सर ने भी आपके साथ डिस्कस कर ली है, तो इसके ऊपर अब मैं ज्यादा ध्यान जो है वो नहीं करूंगा, ठीक है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपने अपने पास रखनी है। इस पे डाइस पे नहीं किसी को भी मैं बुलाऊंगा। एक थिंक अबाउट द बेस्ट लीडर यू हैव एवर वर्क फॉर, या आपने कोई देखा हो कोई अच्छा लीडर, कौन सा आपके दिमाग में आता है, बस सोचना है अपने पास। क्योंकि वर्कशॉप है ना, अकेला ये नहीं है लेक्चर ही चलने हैं, आपसे भी मेंटल एक्सरसाइज हमने करवानी है कोई ना कोई। और एक ऐसा लीडर
सोचो अपने दिमाग में जो आपको लगा यार ये इतना इफेक्टिव नहीं था मेरी जिंदगी में, ठीक है। या लीडर कोई टीचर भी आपके हो सकते हैं, आपके कोई नेबरहुड में से भी हो सकता है, आपकी फैमिली से भी कोई हो सकता है। बस अपने माइंड में सोच के इसको रखना है। ये वाली एक्टिविटी स्किप कर रहे हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। हाँ, अब आ गया लीडरशिप क्या है। तो लीडरशिप क्या है, एक एबिलिटी है जिसके द्वारा क्या है कि किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को हम क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं, गाइड करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि उसने जो हमारा एक कॉमन गोल है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसको कैसे जो है हमने अचीव करना है। और साथ में हमारी जो कुछ क्वालिटीज हैं, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, उन सबको साथ में लेके हमने चलना होता है। एक और चीज है कि जो भी लीडरशिप है वो असेसिबल होनी चाहिए, इजीली हम उसके पास जा सकें। मान लो अगर कोई भी है, जैसे सबसे जिसके साथ आप डेली मिल सकते हो, स्कूल से आए हो आप, ज्यादातर बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, स्कूल्स में बड़ा ट्रेंड रहता है सीआर का, मॉनिटर का। था आपके स्कूल्स में क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर? वो क्या है, क्लास लीडर ही है, रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर वो किसी को सुनेगा ही नहीं, उसको असेस ही नहीं कर सकते आप अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो क्या वो अच्छा लीडर होएगा? तो क्या है कि जो लीडरशिप है वो असेसिबल होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है। आगे आ गया कैसे हम जो है अपनी लीडरशिप स्किल्स को जो है बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसी एग्जाम्पल के साथ चलना चाहिए, और जो हम खुद अपने भाषण देते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुद होना चाहिए। अब मैं बोलूं कि आप सारे ना करप्शन ना किया करो, तो अगर मैं खुद ही करप्शन करूंगा तो क्या सही हो जाएगा? गलत हो गया। अब लीडर ऐसे बोल दे कि आप करप्शन ना करो और खुद उसके ऊपर करप्शन का ही एक चार्ज लगाओ, तो क्या हो गया? लीडरशिप क्या होगी? खराब होगी, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि उसको अपनी टीम के साथ, जिन ग्रुप के साथ वो डील कर रहा है, उनके साथ क्या है कि उसकी कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए और उसकी एक्टिव लिसनिंग भी होनी चाहिए अपनी टीम के लिए, ठीक है। जैसे मैडम ने बोला कि स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर आगे आपको बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह के जो है वो लीडर प्रिवेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी, उसके पास इनिशिएटिव जो है वो लेने की भी ताकत होनी चाहिए। इनिशिएटिव क्या होता है? कुछ नया काम। जैसे अभी आपके ग्रुप बने और कुछ ग्रुप के स्टूडेंट्स तो अपने आप आके इधर बोलने लगे, कई ग्रुप्स को बार बार पुश करना पड़ा कि अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो। तो क्या पता चलता है यहाँ से कि इनिशिएटिव की कमी थोड़ी थोड़ी है। खुद नहीं बच्चे एक्टिवली आगे आके कुछ करना चाहते, लेकिन आफ्टर दिस वर्कशॉप ये जो आप 38 स्टूडेंट्स बैठे हो, आप में वो कुछ ऐसी अलग से डेवलपमेंट होएगी स्किल्स की कि आपको खुद पता चलेगा। आपका भी कोर्स 3-4 साल चलेगा, कोई बच्चे 3 साल बाद लेफ्ट करेंगे, कुछ 4 पूरा करेंगे, तो आप में खुद देखोगे कि इसमें चेंज आया। नेक्स्ट है एम्पावर एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर्स, ठीक है। जो उसके टीम मेंबर्स हैं उनको भी उसने साथ में अपनी कोई अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट करनी है, ठीक है। उनको भी जो है एम्पावर करने के लिए तरफ ध्यान देना। ये नहीं है कि मैं लीडर हूं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग की जो तरन मैडम ने करी थी, क्या थी कि जो बॉस होता है वो कहता है गो, और लीडर क्या बोलता है? लेट्स गो, कि बाकियों को भी तो सिखाना है। ये थोड़ी मैं लीडर हूं तो बाकियों को नहीं सिखाना। तो ये भी चीज जो है वो लीडर्स में होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर बेटर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। हमें इमोशंस की भी इंटेलिजेंस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर पूरी एक अलग से पीपीटी है, वो भी इसके बाद मैं प्ले करूंगा और आपको बताऊंगा इसके ऊपर। यहां पे बस ये वर्ड आप देख लो। नेक्स्ट है कि हमें अपनी इंप्रूवमेंट के लिए लीडरशिप की हमें टाइम टू टाइम जो है वो फीडबैक्स जो है वो हमें लेते रहना चाहिए, कि हमें पता चले। कई बार हमें अनजाने से कोई गलती हो सकती है, या कुछ बोल रहे हैं नहीं पता चलता, तो फीडबैक लेते रहते हैं ना। टीचर्स भी क्लास में टेस्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं? टेस्ट क्या होते हैं? फीडबैक ही है कि जो आपको क्लास में स्टडी करवाई गई है आपको समझ में आया कि नहीं आया, या चलते लेक्चर में पूछ लेते हैं कि हाँ आप बताओ ये क्या है, तो वो क्या है? फीडबैक। तो इसी तरह से लीडरशिप के अंदर भी जो है हमें फीडबैक और सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ जो है पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? अडेप्ट टू चेंज। जब भी
कैसी भी सिचुएशन चल रही है हमें उसके अंदर काम करना आना चाहिए, और एज पर द सिचुएशन हमें अपने अंदर जो है वो चेंज लेके आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे टाइम 9:30 था, तो इसका मतलब 9:30 अगर शुरू कर दिया होता तो अब तक हो सकता है वर्कशॉप का फर्स्ट डे कंप्लीट भी हो जाता। लेकिन हमने देखा कि सुबह फॉग बड़ी ज्यादा है, बच्चे दूर से आते हैं, बच्चों की कॉल भी आ गई कि हमने थोड़ी लेट होना है, कि बस मिस हो गई है या कुछ, तो हमने क्या किया, फ्लेक्सिबल किया ना, जो 10 बजे स्टार्ट करनी थी वो थोड़ी लेट स्टार्ट करी। तो ये क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी। आप भी ऐसे ही करते हो कई बार कॉलेज से घर जाते हो, सोचते हो आज आके सोएंगे, लेकिन आप घर जाते हो, आपके फेवरेट कजन आ गए घर, तो फिर सोते हो, क्या करते हो, उनके साथ एंजॉय करते हो। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैंने आपके वैसे एक एग्जांपल से बता दी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि एज पर द सिचुएशन जो है हमें चेंज होना पड़ना है, रिजिड नहीं रहना हमने। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें अपनी टीम वर्क और अपनी टीम के साथ कोलैब करके जो है हमें प्रॉपरली सारे काम जो है वो करते आने चाहिए। ठीक है, ये इसके अंदर बेसिकली है। और अपने जो गोल्स हैं वो क्लियरली अपनी टीम को बताओ। अब बीइंग अ लीडर, जो हमारी टीम के लिए गोल है वो मैंने अपने दिमाग में ही रख लिए, तो बाकियों को कैसे पता चलेगा? फिर मैं उनको ऐसे ही बोली जाऊंगा, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो ये सही हो जाएगा? गलत है, क्योंकि उनके साथ मैंने कम्युनिकेट ही नहीं करा, उनको गोल्स बताए ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना है तो इन चीजों को जो है वो अपने ध्यान में रखना है। ये जो ऑलरेडी आप पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हो, ठीक है, मैडम ने भी कर दिया, इसको मैं स्किप करता हूं। फिर क्या है कि प्रायोरिटी किस चीजों के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अपनी टीम की प्रायोरिटी भी रखनी है, साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान भी रखना है, करेज भी होना चाहिए हमारे में, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जवाबदेही। ठीक है, ये नहीं है कि अगर मेरी टीम ने अच्छा किया तो सरोपा डरने लगा तो हाँ जी मैंने किया, अगर खराब हो गया तो वो मेंबर ने किया। ऐसे नहीं है, कल को अगर अच्छा हुआ है तब भी हमारी जिम्मेवारी है, अगर खराब हुआ है तब भी किसकी जवाबदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग अ लीडर। ठीक है, डिसीजन टाइमली, अच्छे डिसीजन जो है लेने चाहिए, ऐसी चीजें इसके अंदर रहती हैं। हाँ, ये आगे आ गई क्वालिटीज कि कौन कौन सी अफेक्टिव क्वालिटीज जो है लीडर्स के अंदर होनी चाहिए लीडरशिप की। ये आपने डिस्कस कर भी ली है ऑलमोस्ट सारी की सारी। सबसे पहले एक से स्टार्ट कर लेते हैं, मान लो ऑनेस्टी। तो लीडर जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए। अभी बात करें, हम कहेंगे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद हम वैसा ही कर रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मैं बोल दूं करप्शन नहीं करनी, लेकिन खुद करप्शन ही कर रहे हैं, तो क्या हो गया? लीडरशिप खराब होगी। ठीक है, तो ऑनेस्ट होना चाहिए, और हमारी जो कम्युनिकेशन का लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी टीम के साथ टाइम टू टाइम जो है कम्युनिकेट करने वाले होने चाहिए, ताकि जो है कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी तरह की चलती है। फॉरवर्ड अपना डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी होती है और अपवर्ड कम्युनिकेशन भी होती है। डाउनवर्ड क्या होती है? जो ऊपर से नीचे जाएगी। ठीक है, जो हेड है उससे धीरे 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 नीचे जा रही है, और जो अपवर्ड है वो कौन सी है? जो लो लेवल से अप लेवल पे जा रही है। जैसे मान लो टीम के मेंबर्स हैं, कॉलेज की एग्जांपल ही ले लेते हैं हम, सबसे ऊपर प्रिंसिपल सर, फिर टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स। लेकिन आपकी भी तो फीडबैक कई बार हम प्रिंसिपल सर को बताते हैं कि बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, तो वो क्या हुआ है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड क्या है? जो प्रिंसिपल सर की इंस्ट्रक्शन आती है आप तक लेके आ रहे हैं। नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज के ऊपर हमने काम करना है उसकी। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, विजनरी आउटलुक होनी चाहिए। विजन हमारा अपने विजन जो है हमारे प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए, तब हमारी जो है लीडरशिप अच्छे से चलेगी। करेज होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, कैसे करना है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट टॉपिक सारे मेरे से पहले वाले स्पीकर्स कवर कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है कैसे हमने इंस्पायरिंग जो है लीडर बनना, ये इसका पूरा एक स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले पुट योर पीपल फर्स्ट। जो हमारे लोग हैं टीम के, जो बीइंग अ लीडर मेरे पास मेरे अंडर काम कर रहे हैं, उनको भी फर्स्ट रखना है। सिर्फ ये नहीं है। क्यों बोलते हैं कि हम लोग क्या है कि फेलियर का कारण क्या है कि हम लोग काम की चिंता करते हैं, तो क्या होता है? प्रॉब्लम आती है। अगर हम काम करने वालों की चिंता करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली काम अच्छा ही होएगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि कार्य की चिंता मत करो,
कार्यकर्ता की चिंता करो। कार्यकर्ता मतलब जो काम करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली काम भी फिर अच्छा ही होगा। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, आपके पास प्रॉपरली कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमारी टीम का विजन है वो क्लियरली कम्युनिकेट जो है वो होना चाहिए। फिर अब मान लो अब मैंने कम्युनिकेट किया किसी को, अब एक स्टूडेंट, अपनी एग्जांपल बीइंग अ टीचर स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ मैंने बताया, बच्चा मेरे पास कोई प्रॉब्लम है क्या आ गया, तो क्या हुआ कि बच्चा आया, हम एकदम से हम उसको कुछ गलत बोल दिया, उसके सुना ही नहीं उसको, तो क्या हो गया, गलत बात होगी। तो ये क्या है कि सुनना भी उसको प्रॉपर लिया, ध्यान से सुनना है कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, अपनी टीम का मेंबर, हमने बोला आपने ऐसे काम करना है, उसने अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम बता दी, तो उसको सुनेंगे भी, मानना नहीं मानना अलग चीज है, लेकिन सुनेंगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रीट योर टीम लाइक पीपल, नॉट जस्ट लाइक एम्प्लॉइज, कि उनको जो है एज ए पीपल ट्रीट करना है, एम्प्लॉइज नहीं। सिर्फ ये नहीं सोचना कि ये तो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही करेंगे, तो उनके भी कुछ सेंटिमेंट्स हैं, उनकी भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी अच्छी तरह से जो है वो हमने समझना है, ठीक है। जो हमें नहीं आता, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि कई बार क्या है कि आजकल तो ये वाला ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले बड़ा था कि कई बार कोई चीज नहीं आती होती, कोई पूछ लेता था ना, तो हम गलती बता देते थे तुक्का। आजकल क्या है, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। आजकल क्या हम बोल देते हैं कि पूछ रहे कुछ, हाँ जी, सर आप जैसे बता रहे हो तो मेरा कुछ ये हाउ कैन आई लीडर रिमेन इमोशनली स्ट्रांग एंड टफ व्हेन दे स्टिल पर्सनली। हाँ वो आगे आएगा टॉपिक, उसमें कवर करेंगे बेटर, ठीक है। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस डाला हुआ है मैंने पीपीटी में, ठीक है। मैं कौन से पॉइंट पे था, ठीक है। तो अपना कई बार क्या था कि पहले यही चलता था, कई बार कि किसी ने कोई क्वेश्चन पुट कर दिया, हमें आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो हम ऐसे तीर तुक्का गलत मलत बता देते थे। लेकिन आजकल क्या है, चेंज है जमाना। आजकल आपने भी नोट किया होगा, अगर हम क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अबल तो आता ही होता है टीचर्स को, लेकिन कई बार कुछ अलग लेवल का होता है, या वो क्या बोल देता है कि कोई नहीं तेरे को मैं कल बता के बताऊंगा, ठीक है। फिर वो रिसर्च करके आएंगे, आपको बताएंगे। वो चीज क्या है कि एडमिट व्हाट यू डोंट नो, जो आपको नहीं आता वो आपने एडमिट भी कर लेना। अगर मेरे को कहीं से सीखने की जरूरत पड़ रही है तो मेरे को सीख सकता हूं, उसमें क्या है। बीइंग अ लीडर क्या है, टू वे लर्निंग है। अपनी टीम से भी हम बड़ा कुछ सीखते हैं और खुद भी बहुत कुछ उनको सिखाते हैं। आस्क फॉर फीडबैक एंड एक्ट ऑन इट। अब फीडबैक लेनी है, अब फीडबैक में हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पता चले कि ये थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो उसके ऊपर एक्ट करके उसको पॉजिटिव भी करना है। तो ये भी इसके अंदर प्रोसेस रहता है। और अपनी ऑन योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम इट। अगर कोई हमारा फेलियर हुआ है, वो हमारी मिस्टेक है, हमें उसको एडमिट करने आना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि अगली बार हम ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। और लास्ट में बड़ी जरूरी है कि जो हमारी टीम है सारी, उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो सारा चलता रहता है। बस ये है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI, कीप पीपल इन्फॉर्म्ड, कीप पीपल इन्वॉल्व, कीप पीपल इंटरेस्टेड, कीप पीपल इंस्पायर्ड, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट उनका क्रिएट करके रखना है और उनको इंस्पायर करना है किसी भी तरीके से। कैसे हम अपनी स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी लैंग्वेज जो है वो हमें पता होनी चाहिए किस पर्पस के लिए हमने बात करनी है और कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है। अगर एक लीडर सभी को पंजाबी में बोल रहे हैं टुट के पहना, ऐसे बोलेगा अपनी टीम के साथ, तो क्या टीम बिल्ड अच्छी हो जाएगी? क्या उसका अपनी टीम के साथ रिलेशन अच्छा बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट है एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि जिसमें जो है लोग जो है आपस में अच्छे से इंटरेक्शन भी करते हो, एक दूसरे से कुछ पूछ भी सकते हैं, उसको बता भी सकते हैं। कमिट टू लीडिंग, जो ट्रस्ट है वो बिल्ड जो है वो एक्टिवली बिल्ड करके रखना है। अपनी टीम का हमारे ऊपर ट्रस्ट हो और हमारा अपनी टीम के ऊपर हो। लीडरशिप स्टाइल, यहां पे मैंने
अपना 6 डाले हैं, मेनली 3 चलते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होता है जिसमें लीडर जो है वो अपनी ही बात करेगा, जो उसका दिल कर गया वो बना देगा पॉलिसी और आपके ऊपर थोप देगा, ठीक है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आपकी जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो कम होएगी बीइंग अ मेंबर, ठीक है। ये जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं बैठे हैं यहाँ पे, वो अच्छे से सीख लो क्योंकि आपको इस बार सब्जेक्ट मैनेजमेंट लग गया, फंक्शनल मैनेजमेंट, ठीक है। सेकेंडली डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से लिया गया, ठीक है। इसमें क्या है जो लीडर्स होते हैं वो अपनी टीम को, अपने पीपल्स को साथ लेके जो है वो चलते हैं, उनके भी विचार सुनते हैं और अपने भी लगाते हैं, जैसा हाँ दोनों के 2 वे सारा काम जो है वो चलता है। और थर्ड मेन जो चलती है वो चलती है लेजर फेयर। इसके अंदर क्या है कि घोड़े की लगाम जैसे छोड़ देते हैं ना, लीडर ने कुछ नहीं टेंशन लेनी, सारे का सारा काम किसका है, टीम का। आपका जैसा दिल करता है मोल्ड कर लो, उसने कोई नहीं अपनी और ध्यान देना टीम की तरफ। तो ये जो है मेनली लीडरशिप के स्टाइल्स चलते हैं। एक दो और इसके अंदर मैंने डाले थे, ट्रांसफॉर्मेशनल। इसमें क्या है कि ये अपनी टीम को मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छा काम करो, उनको अपनी लेवल पे पर्सनल सपोर्ट भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके ट्रांजैक्शनल के अंदर क्या है कि जो टीम का क्लियर रोल है, क्लियर कट रोल है, जो टास्क है, जो रिवार्ड है, उनको प्रॉपर्ली उसके बारे में गाइड करते हैं। बस दैट्स एनफ फॉर दिस। ये आगे वाले में कंप्लीट करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ गुड डिसीजन: क्रिएटिव, यूजफुल इंफॉर्मेशन, साउंड रीजनिंग, कमिटमेंट टू फॉलो थ्रू, हेल्पफुल फ्रेम, क्लियर वैल्यूज। यस, लीडरशिप का कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि ये जो सेशन है इसमें हमारे पास 3 मेजर टॉपिक्स थे। एक लीडरशिप था, इसको ऑलरेडी 2 जानों ने बोल भी दिया था, इसलिए इसको मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कवर किया, क्योंकि हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन है वो भी आएंगे, वो भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये था, इसके अंदर हमने लीडरशिप को समझा, उसके स्टाइल्स कौन से हैं, कैसे हम अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, लीडर्स और टीम को इकट्ठे कैसे काम करना है। इन स्लाइड्स में बेसिकली ये था। क्लियर है यहां तक सारा? सेकंड जो हमारा आ गया वो आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो है ना बिल्कुल नया कंसेप्ट है। ये लास्ट में स्टूडेंट्स ने, रमन है ना आपका नाम, उसने पूछा भी था कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आजकल क्या है, ये कंसेप्ट भी जो है यूज होने लग पड़ा है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस इज, पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन सी बताई है उन्होंने कि क्या है, रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन मेड प्रोमिनेंट, ठीक है। आजकल इसके अंदर प्रॉपर जो है बॉडीज बनी है, साइंस की फील्ड्स जो है इसके अंदर काम कर रहे हैं कि लोगों के इमोशंस को समझें। बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है आजकल। थोड़ा सा इसके पार्ट में बात करूं, आपको पता होगा पीछे हमारे कॉलेज ने भी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। क्यों पता नहीं ना चल रहा आजकल कि यहाँ पे स्माइलिंग फेस है, अंदर उनके इमोशंस क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। यहाँ पे आप खुश बैठे हो, अंदर आप कितने सैड हो, नहीं पता। तो बीइंग अ टीम, घरों के दूर रह के हम काम करते हैं, फैमिलीज के साथ कम रह रहे हैं क्योंकि बाहर जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अंदर प्रॉब्लम कोई ना कोई हो सकती है। तो आजकल इसके ऊपर भी जो है टीम बिल्डिंग, लीडरशिप के ऊपर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर भी पूरा जो है वो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इन आवर वर्क लाइफ या इन आवर डेली लाइफ, इमोशनल इंफॉर्मेशन प्लेज अ vital role as the relationship we make or form are guided by the rule or behavior of cooperation and dominance among other that are triggered by our emotion। क्यों किसको सारे फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं? जिसका नेचर अच्छा होगा, गुड लिसनर, जो सुनेगा हमारी। दूसरे नंबर पे, और वैसे पूछा, ये तो आप फ्रेंड्स बनाते हो ना अपनी लाइफ में, किसको बनाते हैं? हाँ जी, हाँ वाइब मैच कर दिया। वाइब की होंगी है, हाँ खड़े होके बोलो।
हाँ ठीक है। अच्छा एक फ्रेंड बनाया, एक फ्रेंड हमने बनाया, उसने कोई गलत बिहेव कर दिया हमारे साथ, कल को वो फ्रेंड रहता है हमारा? रहता, लेकिन केड़ा? फेसबुक वाला कि इंस्टाग्राम वाला? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੂਡੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਫਰੈਂਡਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ? ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹਿੰਦਾ? Matured ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ Emotional intelligence ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਅੱਜ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਗੋ ਅਵੇ, ਆ ਦੋ ਇੱਥੇ ਵਰਡਸ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਸਟਲ 'ਚ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੋ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, EI। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਦੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸੌਰੀ, ਫਰਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸੈਲਫ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਘਟਾਈਏ। ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਫ ਟਰਨਓਵਰ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 2-4 ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਈ ਗਏ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ? ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜੇ 10th ਬੋਰਡਸ 'ਚ 90% ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਲਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਮ ਲਈ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਕਰਨੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਸੈਲਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ 3 ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੌਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਇੰਗ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 5th ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕਨੈਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਸਵੋਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕਨੈਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਡ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵੀਕਨੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕਨੈਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਔਰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ